Very good afternoon to all of you, beta. I'm going to quickly revise in today's session right now. That session which I'm taking right now. I'm going to do periodic table and atmospheric pollution. चलो बेटा फटाफट करते हैं बेटा. आ जाते हैं देवी और सज्जनों फटाफट बेटा. First बेटा in periodic table they will ask you about Dobby-Reiner triad. Dobby-Reiner arrange the element in a group of three. He arrange the element in the group of three. Such that if this is A, this is B, then the middle element will be A plus B by 2. So chemically analogous element when they are arranged in the increasing order of their atomic weight, then the atomic weight of the middle element will be the average of the first and the last, or it is the arithmetic mean of the first and the last. This group of three is known as what? When Dobby-Reiner arrange the element in the increasing order of their atomic weight in a group of three, then we call it as triads. But this failed. Why? Because not applicable for all. एग्जाम में आपको ना ये लॉ पूछ सकते हैं, हाउ यू अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एंड एग्जांपल पूछ सकते हैं. कभी कभी आपको ऐसा भी देंगे, एक्स वाई जेड डॉबिराइनर अरेंज किया, यू नो, राइट, इसका नंबर, इसका मास ये था, इसका मास ये था, तो बीच वाले का कितना होगा. क्लियर. Then on Newland's law of octet, he also arranged the element in the increasing order of their atomic mass only in the octave of music. Sa re ga ma pa da ni sa. तो बेटा ये देखो सात सा आ रहा है कि नहीं बेटा. तो every first and the eighth element will have similar property. Element when they are arranged in the increasing order of their atomic weight shows resemblance in their physical and chemical property. Okay, with first and the eighth element as in octave of music. But he also failed. Why? Because it is applicable only till potassium. Then who came? Mendeleev. बाद में कौन आया? Mendeleev. Mendeleev, what he did, the physical and the chemical properties of element are periodic functions of their atomic weight. स्टार्टिंग के तीनों साइंटिस्ट क्या थे बेटा? एटॉमिक वेट. क्लियर. राइट. देन व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी? सनराइज होता है, सनसेट होता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो इट हैपेंस ऑन द रेगुलर टाइम इंटरवल और नॉट. So the phenomena which is repeated, the properties which are repeat themselves at the regular time interval are called periodic properties. अच्छा, फिर उसका what was the contribution of Mendeleev? This will come for 2 marks या 1 mark. तो कहे तो Mendeleev arrange the element in the vertical column. Vertical column को क्या कहते हैं? ग्रुप. और हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं बोलो बेटा? पीरियड. हार्दिक पंड्या, हॉरिजॉन्टल पीरियड. क्लियर. अच्छा, he arranged the element in such a way that element in the same group have same valency. 2,1 sodium is 281. देख रहा है, वैलेंसी सेम है. तो केमिकली द सिमिलर एलिमेंट इन सेम ग्रुप. देन ही लेफ्ट थ्री प्लेसेस. ये आएगा ही एमसीक्यू में आएगा या मेथ द कॉलम में आएगा. इका बोरॉन क्या होता है? स्कैंडियम. प्लीज मिस्टेक मत करना. बीएससी याद रखो. बीएससी डिग्री होता है कि नहीं, बैचलर ऑफ साइंस. तो इका बोरॉन स्कैंडियम. इका एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं बेटा? एल्यूमिनियम. तो उसको क्या कहेंगे? गैलियम. गैलियम में भी एल आता है और एल्यूमिनियम में भी एल आता है कि नहीं बोलो बेटा. देन इका सिलिकॉन. इका सिलिकॉन को क्या कहते हैं बेटा? जर्मेनियम. क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बट इज क्लासिफिकेशन फेल्ड. उसने क्या बोला था? ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. But sometimes, higher atomic weight. Now look, beta, this was higher atomic weight. Cobalt was coming before nickel. It was 58.6. So this is known as anomalous pair. Certain element having higher atomic weight were placed before the lower. Then isotopes could not find place. Why? Because isotope में क्या होता है? सबका अलग अलग मास होता है कि नहीं बोलो. तो डिफरेंट मास है, तो हाइड्रोजन शुड ऑक्यूपाई थ्री डिफरेंट पोजीशन. बट ऐसा होता है क्या? नहीं. बट दिस कैन बी रेक्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. देन पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. पीरियोडिक टेबल में नीचे दो ऐसा सीरीज होता है, पता है उनको? इनर ट्रांजिशन कहते थे, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. It can be justified only on the basis of atomic number. So who was the modern scientist? Now tell me. Henry Moseley. He was the first one. So first they will tell you what is modern periodic law, or Henry Moseley's law. The physical and the chemical properties of element are periodic functions of their atomic numbers. Atomic numbers. ये याद रखना. क्या याद रखने का? एटॉमिक नंबर्स. How many vertical column in his modern periodic table? How many vertical column are there? Let us count बेटा. देखो ये. Okay. How many vertical column are there? Can you count? 1, 2, 3, 13, 14, 15, 18. 18 groups. How many horizontal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periods. Clear है? Now बेटा एग्जाम इनका फेवरेट क्वेश्चन. फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट आएगा बेटा. व्हाट दे विल आस्क बेटा? पोजीशन ऑफ एलिमेंट. अरे यार ये क्या हो रहा है? चलो. पोजीशन ऑफ एलिमेंट. या सेक्शन तुम्हारा पेपर बेटा कैसा होगा पता है? सेक्शन 1 40 मार्क्स कंपलसरी. राइट ना, मैंने फुल प्रीमियम डाला था ना. सेक्शन 1 40 मार्क्स कंपलसरी. सेक्शन 2 में नॉर्मली दे शुड इट विल बी ऑल्सो 40 मार्क्स. तो 4 आउट ऑफ 6 करना होता है. बट डिपेंड करता है स्कूल में. कोई कोई स्कूल बेटा है ना, एक ही ऑप्शन देता है, कभी कभी ऑप्शन नहीं भी देते. बट आई थिंक दिस ईयर दे विल गिव यू ऑप्शन.
Clear है? So best any four Sir, year. we do have options. So very good. So this time they may give you because last year it was not given. Okay, last to last year, sorry. So you'll be how do you have to do any four out of six. You will what you will do beta in reading time you will directly go to section 2 and you will read it क्योंकि section 1 तो कंपलसरी है ना तो सेक्शन 4 में से जो आपको बेस्ट 4 आता है उसको टिक कर लेना फिर वो सॉल्व करना फिर ओके पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना फिर एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा करना क्लियर है एग्जामिनर क्या करता है बेस्ट ऑफ अगर आपने 6 सॉल्व कर दिया है तो ही विल कंसिडर द मार्क्स ऑफ बेस्ट ऑफ 4 ओके चलो फर्स्ट दे विल आस्क यू पीरियड नंबर हम लोग कैसे ढूंढते हैं पीरियड नंबर इज इक्वल टू व्हाट बेटा बोलो नंबर ऑफ ऑर्बिट Shell. और शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल देन बेटा दे विल टेल यू हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर में हम लोग क्या देखेंगे बोलो बेटा ग्रुप नंबर इज व्हाट Valence electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है बोलो बेटा आउटर मोस्ट Outermost. इलेक्ट्रॉन अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखने का अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपना कितना आएगा अगर वन वन है और वन और वन टू है तो ग्रुप वन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू आएगा तो क्या होगा ग्रुप ग्रुप टू टू Group 2. थ्री और मोर होगा तो 10 प्लस नंबर ऑफ Plus हाँ 10. 10 प्लस नंबर ऑफ अगर थ्री होगा तो 10 प्लस 3 10 प्लस 4 एंड सो ऑन एग्जामिनर में बेटा ये एक फिक्स क्वेश्चन आएगा देयर इज एन एलिमेंट एक्स इट्स एटॉमिक नंबर इज 19 तो हम लोग को पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कितना ऑर्बिट है बोलो तो फाइंड इट पोजीशन सो पीरियड नंबर विल बी व्हाट टेल मी 4. हाउ मेनी 4. ऑर्बिट्स आर हियर पीरियड फॉर ग्रुप 1 वन 2 3 4 सो पीरियड इट विल बी व्हाट 4 4 ग्रुप के लिए क्या करेंगे या शाश्वत टेल मी शाश्वत मैर करके कोई है बेटा कौन है संग्रेश है Sorry. शौरीश है ओके सर वी नीड टू राइट पीरियड नंबर बिफोर ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर बिफोर ग्रुप नंबर तुम्हारे स्कूल में क्या बताया बिकॉज तुम्हारे स्कूल में ना उसके लिए मार्क्स काटते व्हाट दे हैव टोल्ड यू टू राइट डोंट नो सर दे हाँ हैव नॉट स्पेसिफाइड ओके तो फाइन यू नो बेटा यू कैन राइट एनीथिंग अच्छा हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर बेटा वन सो इट विल बी वन suppose there is an element y its atomic number is let us say 17 so what will do 287 how many period are here tell me 3. 3 so period will be 3 how many electron in there are there in outermost shell tell me 7. 7 therefore group will be what beta 10 plus 7 17. are you getting it 17 any difficulty till here hello right then there is one exception what was your exception tell me हीलियम हीलियम तो सपोज बेटा मैंने ऐसा आपको लिख के दे दिया Z इज 2 तो आप 2 लिखोगे हमने ऑर्बिट ओनली वन ऑर्बिट और नॉट टेल मी अरे ऑर्बिट एक ही है ना बेटा तो आप लोग क्या लिखोगे पीरियड वन बट बेटा ग्रुप में आप 2 मत लिखना आप बोलोगे सर आउटर तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन बेटा हीलियम इज अ नोबल गैस सो हियर विल राइट ग्रुप 18 क्लियर एनी डिफिकल्टी Yes, क्लियर sir. पोजीशन आप लिख पाओगे बेटा देन दे विल आस्क यू अबाउट दिस थिंग okay they will ask you about beta period number is equal to what beta look I have given here so first modern periodic table the physical and chemical properties of element are periodic functions of their atomic number then period number they will ask you what is the period beta period is equal to number of shells what is group number it is number of valence electron beta if there is one then group 1 2 then group 2 3 or more है तो plus 10 किया कि नहीं बोलो then they will ask you which is the shortest period you have to by heart this first period had only one shell shortest period how many element are there two both of them are gases name a period in both the element are gas hydrogen and helium that is period 1 ये second and third period are known as short fourth and fifth are known as long second and third में कितना element होगा 8 8 इसमें कितना होगा 18 18 सिक्स्थ इज द लॉन्गेस्ट 26 में बेटा आप कितना लिखोगे सेवेंथ पीरियड में how many elements are there 26 इनकम्प्लीट पीरियड any difficulty यार हेलो राइट Also, इस पे एमसीक्यू आ सकता है विच इज द इनकम्प्लीट पीरियड और फोर्थ पीरियड है how many एलिमेंट सेकंड पीरियड है how many एलिमेंट राइट सिक्स पीरियड है how many एलिमेंट देन बेटा दे विल आस्क यू अबाउट ये ओके हर एक ग्रुप का नाम क्या होता है वो आपको पूछेंगे ग्रुप 1 को क्या बोलते बोलो बेटा एल्कली मेटल अल्काली ग्रुप 2 को कहाँ बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ अल्कालाइन मेटल ग्रुप 17 को क्या नाम है हेलोजन हेलो ग्रुप 18 इज इनर्ट गैस 3 से लेकर 12 को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांजिशन तो अभी बचा कौन इनर 3 to 16 ट्रांजिशन नहीं 3 to 16 को क्या कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशन व्हाट वी कॉल इट एज पोस्ट ट्रांजिशन
फिर ये इन ट्रांजिशन के अंदर से ऐसा दो लाइन आ रहा है क्या नहीं बोलो, तो दे आर इनसाइड द ट्रांजिशन, देयरफॉर दे आर इनर। ए फर्स्ट इज व्हाट लेंथेनाइड, लेंथेनाइड इज इन विच पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, ये पूछेंगे। एक्टेनाइड इज इन विच पीरियड, सेवेंथ पीरियड। क्लियर। नाउ दे विल आस्क अबाउट इंडिविजुअल ग्रुप। इंडिविजुअल ग्रुप में आपको ये याद रखना है, ग्रुप वन इज व्हाट बेटा, लीना के आरबीसी फरार, याद आ रहा है, लीना ने की रब से फरियाद, लीना के आरबीसी फरार, लीना की रबड़ी सस्ती और फ्रेश, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है बेटा। तो अच्छा, ये सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, वन 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 दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वन, वैलेंस ही जिसके भी पास तीन या तीन से कम होगा दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, सो दे विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। So valency is one. They are electropositive, univalent. The one who reduce their own electron, therefore they are strong reducing agent. Give reason. Acha, first name the following. Which group element are strong reducing agent? Group one. Why they are strong reducing agent? Because they have only one electron in their outermost shell and they will lose it readily. All of them are metal. जिसके भी बाहर तीन या तीन से कम होगा वो मेटल होगा। बस पीरियोडिक टेबल में बेटा फर्स्ट 20 एलिमेंट में दो ही मेटलॉइड है, बोरॉन एंड सिलिकॉन। They are very soft metal. They can be cut with the help of knife. They are highly reactive. Therefore, they are stored under kerosene. Why they are stored under kerosene? Because आपको पता है ना, करीना हाईली रिएक्टिव होती है कि नहीं, दे विल रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड कैच फायर, हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था। Why they are known as alkali? Because बेटा if you put them in water, पता है ना बेटा, हम लोग ने पढ़ा था हाइड्रोजन में, इट विल फॉर्म ये, और ये क्या बेस होता है, बट दिस बेस इज वाटर सोल्यूबल, देयरफॉर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली। वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग क्या कहते हैं, alkali. A group one are called alkali metal because when dissolved in water they form strong alkali. Clear? Yes, sir. Then we go to alkaline earth metal. Alkaline earth metal को कैसे याद रखने का, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, टू 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 टू। सो वैलेंस इज टू, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिकॉज दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, डाइवैलेंट, ये लोग भी अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट, बट दे आर वीकर एज कंपेयर टू ग्रुप वन। वाई, ग्रुप वन को एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करने का था, इसको कितना लूज करना पड़ता है, टू। तो देन वी गो टू, ये बेटा याद रखना बेटा ये, ठीक है। देन वी गो टू ग्रुप 17। ग्रुप 17 इज फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। First class biryani I8 means what? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Astatine is under research. It is radioactive. How many electrons are there in the outermost orbit? 7. जिसके भी पास चार या चार से ज्यादा होगा तो it will gain one electron. If it gain one electron, so valency is what? -1. Electronegative. ये जो lose करता था वो reducing agent होता था, ये gain करता है तो कौन सा agent होगा? Oxidizing. Which group element are strong oxidizing agent? बोलो। Group 17, Halogens. yeah. Why? Because they have seven valence electron and they will gain one electron easily. Then they will ask you about the, why they are called as hello, बोका, बोल बेका, बोका। सन्मुख बोलना क्या Sir, हुआ? और वो sir, सॉलिड है। do we need to remember like 7A, No, no, 8A no, 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 and no, 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 not required. Okay, A, hello means salt, Gen means producer. Why they are group 17 are known as halogen? Because when they react with metal, ये देखिए halogen है कि नहीं, react with metal to give you salt. So they are salt producer. Clear? Okay, ये सब give reason मैंने दिया हुआ, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ, फिर से शेयर कर दूंगा। If fluorine and chlorine are gas, bromine is reddish brown liquid, iodine is solid. They will ask you give example of reddish brown liquid, bromine. A solid in group 17, iodine. What is the color of fluorine? Pale yellow. Chlorine greenish yellow gas. In nature में बेटा they all are diatomic. So what is their atomicity? 2 2 2 2. Fluorine we always write F2, Cl2, Br2, I2. So atomicity is 2 diatomic. अच्छा, ये एग्जाम में आएगा बेटा, अच्छे से पढ़ना। विच इज द मोस्ट अबंडेंट हेलोजन? क्लोरीन। हेलोजन इन टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? फ्लोराइन। मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन को ईशान टेल मी, फ्लोरीन। स्विमिंग पूल में कौन होता है? So क्लोरीन। won't hydrogen also be considered as a non-metal, like a halogen? तो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, राइट, इट कैन एक्ट एज बोथ, बट जनरली नॉन मेटल बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, राइट। Yes. आयोडाइज सॉल्ट में क्या होता है? आयोडीन। ये बहुत अच्छे से पढ़ना, ये पूछेंगे। देन बेटा वी गो टू व्हाट? नोबल गैस, रेयर गैस, इनर्ट गैस। हीना, नीना और करीना के एक्स रंगीन या जेरोक्स रंगीन, क्लियर है? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन या ये हमने इलेक्ट्रॉन दिया है इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट 8 8, बट हीलियम में कितना? ड्यूप्लेट। तो हीलियम इज ड्यूप्लेट, रेस्ट ऑल आर 8। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉन रिएक्टिव। हाइड्रोजन H2 बनाता है, तो हीलियम H2 बनाएगा क्या? ऐसा नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बनाता था। तो दे एग्जिस्ट सिंगली, मोनो एटॉमिक। विच ग्रुप एलिमेंट आर मोनो एटॉमिक गैस? कम ऑन।
noble gas, rare gas, inert gas, group 18. Clear? Any difficulty till here? ये 3 to No. 12 को क्या बोलते थे हम लोग बेटा? यहाँ पर अभी बीच वाले थे बेटा, बीच वाले 3 to 12 को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट. Last two shells are incompletely filled. They have variable valency. Ferrous, ferric, cuprous, cupric. A copper is blue color. Ferrous is dirty green. Ferric is reddish brown. Their compounds are colored. Why they are called as transition? Because on the left hand side of the periodic table they have what beta? Metal. They have what? Below on the periodic table left hand side what they have? Extremely reactive metals and Metal. extremely Yeah, reactive metal. And here non-metals. are non-metal. So they are in between. Therefore they are called as beta this. Because they are placed between. बराबर है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी No, राइट sir. ओके वी हैव रहमान डकैत इन द हाउस क्लियर है वेरी गुड चला गया रहमान डकैत आया था एनीवेज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बेटा वेयर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दे आर प्लेस बेटा लुक हियर क्लियर है सो दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप 3 बट लैंथेनाइड इज इन पीरियड 6 एक्टिनाइड इन ये बहुत बार पूछा गया है लैंथेनाइड इन पीरियड 6 एंड एक्टिनाइड इन पीरियड 7 ओके so first inner transition series में कौन है lanthanide in MCQ they will ask lanthanide are also known as rare earth period 6 group 3 total 14 in this second inner transition series का नाम क्या है actinide they will ask this very frequently actinides are all radioactive they belong to period 7 and group 3 यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो भाई then beta we go No, to sir. group 13 14 15 16 they are known as post lanthanide they have all metal metalloid and non-metals. Clear. Now they will ask you what are normal elements. What are normal elements? They are belong to group 1, 2, then directly 13, 14, 15, 16, 17. Can you see I have written this was in group 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17. ये they have all their shell incomplete to fill except the outermost. देखना दो अंदर का सब भरा हुआ है खाली बाहर का shell incomplete है कि नहीं बोलो बेटा. So these are the elements in which all shells are completely filled except the outermost shell. Why we are not taken group 18 because group 18 में वो भरा हुआ रहता है. क्लियर एनी डिफिकल्टी क्लियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके जाना अच्छे से भूलना मत नॉर्मल एलिमेंट्स टेल मी वहाँ गए एनी डिफिकल्टी क्लियर राइट No. स्टार्टिंग एंड एंडिंग एलिमेंट बेटा याद करेगा तो अच्छा है बेटा उसने एक जन ने मेरे को पूछा कि स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट करना है याद तो कर लेना बेटा लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड का लेंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होता है सीरियम टू लुटेटियम एक्टेनाइड स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम ठीक है For this, स्टार्टिंग एंड एंडिंग एलिमेंट एक बार रीड कर लेना बिकॉज टेक्स्ट बुक में दिया है ना बेटा लैंथेनाइट स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम लुटे एंड विद लुटेटियम एक्टिनाइट फ्रॉम थोरियम एंड लॉरेंशियम yes, वो आ गया है देन बेटा वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट बेटा ब्रिज एलिमेंट क्या होता है और डायगोनल रिलेशनशिप एलिमेंट फ्रॉम पीरियड टू एंड पीरियड 3 तो बेटा कैन यू सी इसका एटॉमिक साइज और इसका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर तो लिथियम का डायगोनल कौन है मैग्नीशियम बेरिलियम का कौन है एल्यूमिनियम बोरॉन का कौन है सिलिकॉन why they are diagonal or bridge element because they have similar atomic size they are found only in period 2 and period 3 in the next group diagonally opposite to the next group clear तो विल से सर ये सब आपने बताया वो कहाँ है देख बेटा यहाँ पर मैंने बताया अभी आप लोगों को देखो वी डिड दिस नॉर्मल एलिमेंट देन दिस ब्रिज एलिमेंट देखना लिथियम का मैग्नीशियम है बेरिलियम क्लियर है दे आर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ओनली दिखाई दे रहा है सेकेंड एंड थर्ड इन द नेक्स्ट ग्रुप एनी डिफिकल्टी क्लियर बेटा आई हैव एक्सप्लेन दिस एंटायर पेज बेटा ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप ये पूरा मैंने बता दिया और ये वाला भी वो लोग ने इंडिविजुअली दिया था ना हम लोग ने अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ एंड हैलोजन एक में ही पढ़ लिया ये सब फिर नोबल गैसेस देन वी गो टू द नेक्स्ट ट्रेंड एंड दैट इज व्हाट बेटा पीरियोडिक ट्रेंड क्या है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छा बेटा अगर मैं ऐसा सेंटर बनाता सर्कल से यहाँ पे बनाता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं रेडियस क्या कहते हैं रेडियस बट सपोज इफ देयर इज एन एटम तो एटम के सेंटर से मैं अगर एक ऐसा लाइन बनाता फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो बेटा Atomic radius. एटॉमिक रेडियस क्या कहेंगे atomic radius now beta they will ask you two things down the group what happens and across the period ठीक है अच्छा डाउन द ग्रुप में जाएगा बेटा तो व्हाट विल हैपन बेटा इफ यू गो डाउन द ग्रुप कैन यू सी Increase. नहीं नहीं पहला दो तीन चीजें बता देता एक ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो बेटा 1 1 1 1 1 ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 2 2 2 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 सो वैलेंस इज ऑल्सो 1 यहाँ पे बाहर 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इज 2 यहाँ पे बाहर 3 है तो वैलेंस इज 3 यहाँ इट इज 4 सो 4 ये 2,5 होगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो वैलेंसी 3 हो जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी 2 1 एंड दिस विल नॉट टेक एनी जीरो वी डाउन द ग्रुप आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे डाउन द ग्रुप अगर पूछेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो रिमेन सेम अक्रॉस द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था 2,1
फिर 2,2 तो इट इंक्रीजेस बाय 1, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, दिखाई दे रहा है ना, 2,4, 2,5। पूछते हैं डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय 1। डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस टू द वैलेंसी, डाउन द ग्रुप ये 1 1 ही था ना बेटा, 1। बट अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू 4, देन इट डिक्रीजेस अप टू 0, दिखाई दे रहा है। अच्छा डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेटा ऑर्बिट कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितना है बोलो बेटा, 2 है। यहाँ पे कितना है ऑर्बिट, 3 है, तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस बाय 1। One. बट अक्रॉस द पीरियड आप देखोगे तो सेम है ना ऑर्बिट्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स सेम। क्लियर है। नाउ यू ओनली टेल मी बेटा, डाउन द ग्रुप बेटा एट नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, सो व्हाट हैपेंस टू योर रेडियस, टेल मी। increases. तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस या एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर, ये दिमाग में गया क्या। अच्छा बेटा अभी ना आपको दो तीन चीजें एक साथ में बता देता हूँ, खाली एक याद रखना, डाउन द ग्रुप खाली एटॉमिक साइज ही बढ़ता है, बाकी सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो कम होगा। व्हाट आर द अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द अदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। Electronic affinity. या look these are the periodic electron affinity, ये अच्छा this will, ये खाली डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। बाकी ये तीनों क्या होने वाला है, डिक्रीज। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और ये तीनों क्या होगा, इंक्रीज। अभी मैं तुमको एक एक करके पछाछे, नाउ यू ओनली टेल मी बेटा, अभी सब एक साथ में बता देता बेटा। अभी अच्छा मेरे को बताओ अभी ना, मुझे क्या करना है, एटॉमिक साइज के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, ये अक्रॉस द पीरियड हम लोग ने ऐसा लिखा, दिख रहा है, ये अक्रॉस द पीरियड है क्या Remain नहीं? हाँ। same now. नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं बता रहा ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन सेम और नॉट, टेल मी। अरे सोडियम इज 281, दिस इज 282, दिस इज 283, सो पीरियड नंबर, पीरियड रिमेन सेम, बट अच्छा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है नहीं, न्यूट्रॉन पे प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इट इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर और नॉट, टेल मी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सोडियम इट इज 11, सो व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज हियर, 11। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस यहाँ पे कितना है बेटा, न्यूक्लियस, अरे बेटा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। तो व्हाट इज हैपनिंग टू द न्यूक्लियर चार्ज, बोलो। यहाँ पे 11 पॉजिटिव है, कौन से न्यूक्लियस पे ज्यादा चार्ज है, 11, 12 और 13, टेल मी। 13 ना। 13. अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोजर और विल मूव अवे। अरे बेटा मेरे Close. न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन का Away. क्या हुए, Closer. पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींचेगा, बोलो। क्या Proton. 13 वाला. हाँ, तो Sir, but electrons भी equal है तो और protons भी equal है हर इलेक्ट्रॉन केस को में. नहीं देखने का बेटा, न्यूक्लियर चार्ज पे देखने का, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कौन रखता है वो देख पहले, नंबर को कुछ भी Okay. होने दे। ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड क्या बोलोगे आप बेटा, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा बोलो, डिक्रीजेस। तो ये देखो बेटा, फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारा, बोलो बेटा, एटॉमिक साइज, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। Can you see down the group beta this size is increasing or not? So they, why it increases, so you have to write this because number of shell increases across the period. Can you see this atomic size is decreasing, देखना कम हो रहा है कि नहीं। ये इतना बड़ा नहीं होता है, थोड़ा ही बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है बेटा। ओके। ओके तो लिख, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हेंस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो पूरे पीरियड इन अ पर्टिकुलर पीरियड हु इज द बिगेस्ट अल्कली मेटल, हु इज द स्मॉलेस्ट हैलोजन। ये व्हाई नोबल गैस इज स्लाइटली बिगर, इट इज स्लाइटली बिगर, व्हाई, बिकॉज नोबल गैस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर द, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर है। वक्के down the group size increases, across the period decreases. So look, I have written this here also, alkali metals are always biggest, halogen are smallest, inert gases are slightly bigger than the respective halogen। ये वाला नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है। अब बेटा मैं आपको बता देता एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ये देखना डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है कि नहीं, कम ऑन, कोई नहीं रोक सकता। हम्म हम्म। अरे यार ये देखना ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है कि नहीं, देखो ना भाई। Yes, sir.
इट इज इंक्रीजिंग, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा हो रहा है कि नहीं, और नोबल गैस देखना इससे थोड़ा बड़ा है कि नहीं, बोलो बेटा। नोबडी विल टेल यू टू रिमेंबर द वैल्यू, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओ माय गॉड। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड, तो पहला तो पूछेगा हु इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट कौन दिख रहा है इसमें, cesium. सीजियम, ठीक है ना बेटा, ओके। अच्छा अभी आपको पूछेगी ये अल्कली मेटल था, ग्रुप वन को क्या कहते थे, अल्कली, ये अल्कलाइन अर्थ है, ये हेलोजन है, ये नोबल गैसेस है। तो पूछेगे अल्कली मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलोगे तो कैसा लिखोगे, ली ना के आर बी सीज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग। अगर मैंने डिक्रीजिंग के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ, डिक्रीजिंग, या शिश, रूले, शिशान रूले, क्या है भाई, सर फ्रांसियम क्यों नहीं लिखते हम लोग बिकॉज फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है ना, हम लोग पढ़ते नहीं है उसके बारे में, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो लिखने का। डिक्रीजेस के जगह पे मैं कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूँ, तो अगर इसको, एंड तो इसको डिसेंडिंग लिखने का रहेगा तो कैसे लिखेंगे बोल, उल्टा ना, सीजियम रुबिडियम, cesium rubidium या ये आरबी Na करीना अला, वेरी गुड। नीली। अगर ग्रुप टू में मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो क्या होगा, बेटा मांगे कार कार स्कूटर बाप कार राजी, बरोबर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो उल्टा, समझ में आ रहा है, अरे बोलो ना। यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको हेलोजन के लिए भी पूछेगा, इंक्रीजिंग बोला तो फर्स्ट क्लास बिरयानी यहाँ 8, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। सेम फॉर नोबल गैसेस, तो आपको एग्जाम में ये पूछेंगे बेटा, ये ग्रुप का मैंने बताया, तो ये मैंने पूरा यहाँ पे दे दिया है, टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन ऐसा पूछते हैं, तो मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया, मैंने दोनों ऑर्डर दे दिया है, दो, अरे दोनों ऑर्डर मैंने दे दिया, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये क्या था बोलो बेटा, अल्कली Yes, मेटल sir. इंक्रीजिंग, एंड दिस इज डिक्रीजिंग। अल्कलाइन अर्थ का भी दिख रहा है, हेलोजन का भी, और नोबल गैस का भी। अच्छा डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ते जाता है कि नहीं, बोलो भाई, यस सर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है कि नहीं, तो वो नहीं, व्हाट हैपेंस विद द नंबर ऑफ शेल, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, आ जाएगा, बोलो। अब बेटा मैं आपको ना थोड़ी छोटी छोटा प्रॉब्लम बता दे। अब बेटा अब मेरे को बताने का बेटा, वो अच्छा, अभी बेटा कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस में। नीचे वाला यहाँ पर एकदम बेटा, Sir, नीचे वाला नीचे वाला इजीली लूज करेगा. हाँ यहाँ पे फोर्स कम है, because उसका हाँ atomic radius ज्यादा। बड़ा है, वेरी गुड, इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा तो दिस विल गिव इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बहुत टाइम लगेगा। अच्छा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और रेड्यूसिंग कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप रेड्यूसिंग कैरेक्टर, बोलो, इंक्रीजेस, आसानी से इंक्रीजिंग देगा कि नहीं, बोलो बेटा, इंक्रीजेस। तो बेटा यस. ये भी मैंने यहाँ पे मिक्स करके दिया, आप पढ़ो ना यहाँ पर बेटा, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रेड्यूसिंग, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो ये ग्रुप वाला लिखने का है, क्लियर है, और डिक्रीजिंग बोला तो ऐसा, तो ये सब एक ही So, में आ what is गया। the definition of metallic character? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अच्छा अच्छा तो हु विल लूज इलेक्ट्रॉन इजली, या शीशांश रूले, Sir, if they tell us to increasing order of atomic size in period, then तो पीत, so अरे we will बठाठे बठाठे, शांति, पहला ग्रुप का तो होंगे, ग्रुप का हो गया। अब हम लोग पीरियड में बेटा, पीरियड का मैंने अलग से दिया यहाँ पे, देख एटॉमिक साइज पीरियड का बोला कि नहीं, लेकिन अभी आप मेरे को बताओ पीरियड में क्या हो रहा था बेटा, कौन सबसे बड़ा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, दिख रहा है कि नहीं। lithium सबसे बड़ा है, lithium. फ्लोरीन सबसे छोटा है. हाँ लेकिन फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो नियॉन इसके पहले आएगा, समझ में आ रहा है क्या, हेलो, राइट, Yes, sir. ये 69 यस होता था, ये सर 68 होता था, एनीवेज तो ये इससे बड़ा होगा। ऑक्सीजन, तो ये देखना, इसलिए का भी मैंने ध्यान दिया है, अगर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगी तो देखो ना गौर से, नियॉन पहले आया फिर फ्लोरीन आया, देखना लिथियम से साइज कम होते जा रहा था कि नहीं, बोलो, राइट। इंक्रीजिंग बोला तो फ्लोरीन पहले Yes, आएगा, फिर sir. नियॉन आएगा, फिर लिथियम आएगा, सेम फॉर पीरियड थ्री, दिख रहा है कि नहीं, ये आर्गॉन पहले आ रहा है हेलोजन से, ये ध्यान रखना, मैंने ये पूरा दे दिया है ना, क्लियर है। अब बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। अब बेटा सपोज बेटा एक एटम है, एटम को बाहर ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस ने। तो अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो अपने आप बाहर आएगा क्या, नहीं, सपोज ये सोडियम है, सोडियम में से ये इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है, तो मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, बाहर वाला ना बेटा, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, Na1 प्लस आयन बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप निकलेगा या मुझे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, बोलो ब्रेक करने के लिए, सम्मुख तुक्का बोल बे,
सर ये इक्वेशन का नाम क्या है आपने जो लिखा ये है? लिखा है, इसको कहते हैं आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन, ठीक है। और ये है ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं? अच्छा आप मेरे को बताओ, ये सर आप इलेक्ट्रॉन, बता सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो आइडेंटिफाई? बताऊंगा ना बेटा, रुक न राजा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी सब बताऊंगा, पहले ये पार्ट करने देना मुझे राजा। ठीक है, अभी तू मुझे बता, ये बाबू भैया, बाबू भैया, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप निकलेगा क्या? यस नहीं ना? सर। हाँ, अपने आप नहीं निकलने वाला है, तो आई हैव टू सप्लाई एनर्जी। सो द यस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव विच इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom is known as ionization potential। एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गेशियस एटम। अभी आप मेरे को बताइए, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? बोलो। नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे हाँ, वाला। तो यहाँ पे क्या होगा? लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके लिए क्या होगा? हाई। मैंने आपको बताया था ना, डाउन द ग्रुप सिर्फ एटॉमिक साइज ही बढ़ता है, बाकी सब क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि नहीं? बोलो। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन यस सर। पोटेंशियल डिक्रीजेस। अक्रॉस द पीरियड क्या होता था? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता था कि नहीं? तो यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रॉन दूर है तो यहाँ पे लो आईपी होगा कि नहीं? यहाँ पे नजदीक है तो ये पे क्या होगा? हाई आईपी। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। इंक्रीज। The क्लियर है? amount IP like depends on energy required, right? या, तो वेर इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी, व्हेन इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस और इट इज अवे। Okay, closer. हाँ, तो बेटा ये देखो, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। डाउन द ग्रुप क्या होता है? बोलो बेटा, डिक्रीजेस। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? बोलो, इंक्रीजेस। रिशान गोट, टेल मी व्हाट इज द डाउट? सर ऐसे तो मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है ना बेसिकली जो हाँ, तो लगता है। एनर्जी है ना भाई, अभी 10 बार तो बता दिया, एनर्जी है ना वो भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ मतलब में नहीं आ रहा है? अबे येड़े, तेरे तूने ना ऐसा हाथ में एक बॉल पकड़ के रखा है, एक बार तूने नजदीक रखा है तूने और दूर रखा है, तो मैं कब आसानी से तेरे से बॉल ले लूंगा? जब तेरे से दूर होगा तब ना बेटा। हाँ। तो उसको निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी लगेगा कि नहीं? बोलो। ओ ठीक है सर, समझ गया। क्या ठीक है येड़े? बरोबर है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया बेटा। वक्के, पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है? हीलियम का। लोएस्ट किसका होगा? सीजियम का। क्यों? क्योंकि सीजियम सबसे बड़ा है कि नहीं? बोल। अभी तू मेरे को यस सर। बताना हीरो, यहाँ पे से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है। चलिए ऊपर वाला यहाँ से, किसमें से तू इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएगा? इजियम। जब, हाँ, तो दूर रहेगा तो इसमें कम एनर्जी लगेगा, इसमें मोर लगेगा कि नहीं? इसमें अगर जाएगा तो किसमें सबसे ज्यादा लगेगा? इसमें लगेगा कि नहीं? बोल बेटा, क्लियर है? ओके। अभी जैसे यस। आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, वैसे हम लोग कभी क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो मुझे एनर्जी क्या करना पड़ता था? सप्लाई। अब मैं क्या करने वाला हूं? मुझे इलेक्ट्रॉन क्या करना है? ऐड करना है। क्या करने का है? ऐड। ए, आई टेकन यार क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने का है, तो एक क्लोरीन कितना था? 287। इसके अंदर तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये Cl क्लोरीन वन माइनस बन माइनस। जाएगा, अनायन बनेगा कि नहीं? लेकिन ये स्टेबल हो गया कि नहीं? ओके, ये अनस्टेबल था, देखना इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो बेटा ये जब इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता था, तो ऐड करेंगे तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड gaseous एटम, ये देखना, accepts an electron to form which ion? Anion. To form which ion? Anion। दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो ना, ये देखो, amount of energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an anion। बराबर है। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ बेटा, कब मैं इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करूंगा? बोलो। बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो किसमें बेटा इलेक्ट्रॉन नजदीक है न्यूक्लियस से? पहले वाले में बाहर वाला इलेक्ट्रॉन देखो। पहला वाला में हाँ, तो ज्यादा ये नजदीक आसान, है। हाँ, तो ये आसानी से तो हाई, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और नीचे दूर है ना, तो क्या होगा? लो। मैंने लो। आपको एक ही चीज बताया था, डाउन द ग्रुप खाली एटॉमिक साइज ही बढ़ता है, बाकी सब कम होता है। आईपी भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होता है। अभी अक्रॉस द पीरियड में बेटा कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? अभी देखो, मुझे बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये दूर है ना,
यहाँ पे नजदीक है कि नहीं बोलो, यहाँ पे और नजदीक है कि नहीं बोलो बेटा। तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। इसमें बेटा एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है? ओके, वो भी मैं बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अभी आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो सब बताओ तो सही। देख यहाँ पे मैंने दिया है बेटा, इधर गया इलेक्ट्रॉ आयनाइजेशन पोटेंशियल। देख आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो कर पाओगे। अरे डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है कि नहीं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो देख Sir, लिखा so क्या in a है। period, noble gases have the highest ionization potential, right? हाँ बरोबर है, ठीक है ना। पहले ये देखना, पहले डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, अल्कलाइन अर्थ ये वो, नोबल गैस, बराबर है कि नहीं। पीरियड में भी बोलेगा तो देखना लेफ्ट टू राइट क्या होता है बोलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, उल्टा डिक्रीज। ये पीरियड 2 पीरियड 3 इसी का ही पूछते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले। फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में झोल हो गया बेटा, कहाँ पे झोल हो गया, हेलोजन में बेटा ऊपर जाते थे तो क्या होता था, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई इट ना। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। गिव दी क्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हकीकत में फ्लोरीन का होना चाहिए था कि नहीं। तो देख बेटा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो देख ना, फ्लोरीन के बाद मतलब क्लोरीन का ज्यादा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो क्लोरीन पहले फिर फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये क्यों होता है? हाँ ये क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना, ये पूछते एग्जाम में पूछते हु हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो कौन हो जाएगा बोलो Chlorine, बेटा, क्लोरीन। chlorine. अच्छा नोबल गैस लोग इलेक्ट्रॉन लेके क्या, नहीं। तो Uh, विच ग्रुप एलिमेंट है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो लोग ऑलरेडी स्टेबल है ना। क्लियर है। तो हाँ क्लोरीन का क्यों ज्यादा होता है बेटा वो भी मैं बताता हूँ। ये फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, इसमें ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, राइट। और इसके अंदर 17 है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखना बेटा साइज बड़ा है तो ऐसा है। फ्लोरीन, ये क्लोरीन। अभी बेटा इमेजिन आप है ना बेटा, आपको एक दो बस आपके सामने आई, ये क्राउडेड बस है और ये लेस क्राउडेड है, किसमें आप आसानी से जा पाओगे। less crowded. दस पाउंड। हाँ तो आपको लेकिन आंसर ये क्राउडेड लेस क्राउडेड नहीं लिखना, आप क्या लिखोगे, फ्लोरीन साइज इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन। In chlorine, beta, electron density is comparatively less than fluorine, so this electron can enter easily. Therefore, fluorine has more electron affinity. Clear? यस सर। Right? फिर बाद में आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, देखो बेटा इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में। विवान टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम ब्रो। So, sir, if chlorine has a more electron affinity because it is a क्लोरीन less नहीं, dense, क्लोरीन हैज मोर। chlorine वही बोल रहा था. Then bromine should also have more electron हाँ affinity. बरोबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने, लेकिन ब्रोमीन का बेटा क्या हो जाता है, ब्रोमीन में देखो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में वो हम लोग 11th में पढ़ाते हैं, लेकिन देख फ्लो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है, 8 का। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का होता है बेटा, 18 का। 35। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाता है। साइज बड़ा लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ता है बेटा। क्लियर है। अच्छा अच्छा. हम्म। अच्छा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा रहा था, देख भुला दिया इसने। अरे यार ये तो सब गायब हो गया है, किधर गया। चल मैं वापस बना देता हूँ। बेटा इलेक्ट्रो टग ऑफ वॉर हम लोग को दो जन के बीच में हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में। कौन ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है आपको, एक्स या वाई, वाई ना बेटा। वाई। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा बोलो, वाई। वाई की तरफ। डन डन, या विवान टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम नाउ। Sir, electronegativity और non-metallic character में क्या difference? बताता हूँ, 2 मिनट रुकेगा क्या, पहले ये देखा, ये इतना समझा क्या पहले, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुन लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड। ये कंपाउंड था ना, इन दोनों के बीच में उसने पुल किया। क्लियर है। अच्छा अगर हम लोग बेटा, हम लोग सपोज इमेजिन हम लोग सब लोग एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, हम लोग आपस में टग ऑफ वॉर करोगे, तो टग ऑफ वॉर करोगे तो आपका एक इनबिल्ड प्रॉपर्टी होगा कि नहीं पुल करने का। वैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन किसका सबसे पावरफुल पुलिंग प्रॉपर्टी है, फ्लोरीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेगा तो फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेगे तो क्लोरीन। ओके। तो देख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स कंबाइंड स्टेट। अभी तू जो बोल रहा था ना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में कंबाइंड स्टेट नहीं होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। मैं अगर क्लोरीन हूं तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा कि नहीं बोल भाई मेरे, मैं नॉन मेटल हूं कि नहीं बोलो फिर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या था, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, अब समझा।
यस और सर, इसमें इन कंपाउंड होता था, ये तो अकेला क्लोरीन है ना बेटा, वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? यस सर। ओके, तो अभी बेटा बस वापिस वो का वही चीज, डाउन द ग्रुप खाली तुम्हारा क्या बढ़ता था बोलो बेटा? ए भाई, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, या मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक डिक्रीज। कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो देख डाउन द ग्रुप खाली कौन बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। बोलो ऋषान, क्या है डाउट? Sir, which element has the highest ionization potential? हीलियम बेटा। हीलियम। अरे Why is that यार, so? ये देख ना राजा, अभी तो बताया था, तेरा ध्यान किधर है भाई? ये देख, मैं ये वाला पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा फिर से, ठीक है? ओके, तो यहाँ यस तक कोई सर। दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बेटा? तो बेटा ये देखो एग्जाम में ये ऐसा आता है, देख डाउन द ग्रुप एंड टॉप टू बॉटम दिख रहा है कि नहीं? तो आज हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, खाली देख एटॉमिक साइज ही बढ़ता है, ये सब कम हुआ कि नहीं? फिर देखिए आज हम लोग ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा कि नहीं, ये तीनों देखो बेटा, सब डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर ये देखिए वैलेंसी, वैलेंसी डाउन द ग्रुप रिमेन सेम अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीजेज अप टू 4 ना। सोडियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, कार्बन का 4, फिर कम होते जाता है कि नहीं, डिक्रीजेज अप टू 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर क्या रहेगा ग्रुप में, सेम अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीजेज बाय 2,1, 2,2, 2,3। नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज बाय 1, पहले पीरियड में एक शेल, दूसरे में दो, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। ये डाउन द ग्रुप बेटा रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, क्योंकि एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगा बिकॉज साइज डिक्रीज होगा। क्लियर है? वो गई राइट बेटा। अभी आपको एग्जाम है बेटा, इसमें क्या, अच्छा पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एडवांटेज थे बेटा, उसका डिफेक्ट भी है पीरियोडिक टेबल का। क्या डिफेक्ट था? ये वाला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रेन होता है पोजीशन ऑफ रात। लैक्टेनाइड्स एंड एंथ्राइड। हाँ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज, नहीं दिखेगा। Few defects also. Position of hydrogen is not justified because it can be placed in group 1 and 17, and the position of lanthanide and actinide do not have individual place. उनको नीचे रखा गया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो ना? नो ये सर। ब्रिज, हाँ ये ब्रिज एलिमेंट वगैरह सब अच्छे से पढ़ना। अभी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कैसा है बेटा, दे विल कंबाइन, जनरली आपको ना ऐसा एक टेबल दे देंगे बेटा। अरे यार, ऐसा आपको एक टेबल दे देंगे ऐसा। बहुत ही गंदा टेबल बनाया मैंने। और ऐसा आपको लिख के दे देंगे, ये ग्रुप 1 है, 2 है, ये 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। फिर आपको ऐसा पीरियड भी दे देंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसा। फिर यहाँ पे आपको एलिमेंट भी दे देंगे। ओके, ऐसा एलिमेंट लिख के दे दिया, A B, राइट ना बेटा? फिर X Y ऐसा। सॉरी सॉरी, पहले में AB कैसे आएगा? पहले पीरियड में तो दो ही एलिमेंट होता है ना, AB, बरोबर है? फिर आपको ऐसा दे दिया है PQR, ऐसा रैंडमली मैं कुछ भी दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको, अरे यार जहाँ ना भाई, मैक कैफी क्यों आ रहा है, XYZ, ऐसा दे दिया आपको मैंने, ठीक है? फिर यहाँ पे दे दिया M, ओके, यहाँ पे दे दिया बेटा L। अब मैं आपको कैसा क्वेश्चन पूछूंगा, सुन लो अच्छी तरह से बेटा। इसमें ना हम लोग है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर से कंबाइन करते हैं बहुत बार क्वेश्चन। तो पहला मैं पूछूंगा, आपको पता है बेटा, पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा, इन ग्रुप 1 हु इज द लार्जेस्ट साइज इन ग्रुप 1, बताओ। आर। ग्रुप 1 और में बिगेस्ट कौन आर। होगा? हाँ वेरी R. गुड। तो प्लीज खुद से हाँ एलिमेंट मत लिखना, अगर ये अल्फाबेट ऐसा दिया तो विल राइट इन अल्फाबेट ओनली। समझा क्या? विच इज द यस। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बी। होगा? बी। सॉरी, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्स 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 फ्लोरीन एक्स होता है ना, फ्लोरीन कहाँ पे होता था पीरियोडिक टेबल में एक्स बेटा? एक्स एक्स। तो ये होगा तुम्हारा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन और एफिनिटी एम किसका? एम एम। क्लोरीन का होता था। तो क्लोरीन मत लिखना आप लोग, यहाँ पे देखना, वहां पे अल्फाबेट क्लोरीन की जगह पे आपको कौन नजर आ रहा है, एम। फिर ऐसा बोला, नोबल गैस इन पीरियड 3, नोबल गैस, जी। जेड। अच्छा पीरियड 4 में बोल दिया, चलो नोबल गैस इन पीरियड 4, एल। तो कौन है, एल। समझा गया?
फिर मैं आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछूंगा, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, यहाँ पे भी मैं एक और दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक आर दे दिया, आर। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर एक्स एक्स नहीं, एक्स होगा ना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ तो लिया है ना मैंने एक्स। आपने वाई लिखा है अरे ना। वो एक्स है रे बेटा, चलो वैसा हो, लिखते लिखते वो कट गया, ठीक है ना बेटा। फिर बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी का तो हो गया ना बेटा, एम। अच्छा ये मैंने अगर बोला आप लोगों को, ए भाई टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए एंड एम के बीच में कौन बनेगा बोलो। कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट, हाँ। इलेक्ट्रोवैलेंट। नहीं आयोनिक आयोनिक नहीं, आयोनिक और अरे पहला इलेक्ट्रोवैलेंट। सुनेगा, ये पीरियड वन में ए कौन होता था, हाइड्रोजन होता था कि नहीं बोलो। पोलर कोवैलेंट। हाइड्रोजन, और ये कौन है, हेलोजन है कि नहीं बोलो। तो दोनों नॉन मेटल है कि नहीं, तो क्या बनता था, ए और एक्स के बीच में, ए एंड एक्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता था, पोलार पोलर कोवलेंट। कोवैलेंट। हाँ लेकिन तुम लोग कोवलेंट याद रखो, सॉरेश पोलार ने तुम क्यों लोग को बोला सर? कभी कोवलेंट नहीं है। हाँ क्या है, सॉरेश ने क्यों बोला फिर वो इलेक्ट्रोवैलेंट था? रॉन्ग है, उसने रॉन्ग मैंने बोला है। कोवैलेंट ही। हाँ जिसने भी बोला जो भी है, तेरे को बोल रहा हूं ना मैं, लॉजिक के साथ बता रहा, लेकिन अगर मैंने बोला रहता टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पी एंड एम, पी एंड एम मतलब पी कौन है बोलो। इलेक्ट्रोवैलेंट। हाँ तो अभी ये मेटल हो जाता, मेटल और ये नॉन मेटल, तो पी एंड एम के बीच में क्या हो जाता बोलो बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक। ठीक है ना बेटा। सर राइट, सो सिमिलर मतलब मेटल और मेटल के बीच में मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, समझा क्या। नहीं सर, मेटल और मेटल के बीच में कोवैलेंट है ना। देगा राप्टा, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड ही नहीं बनता है पागल। अब फिर बेटा इधर पे आ जाते हैं, अगर मैंने बोला आर और एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, आर और एक्स का फॉर्मूला। आर नो, आर आर एक्स, ग्रुप टू सर में, कौन सा आर? सर कौन सा आर? ये अच्छा, आर एक्स टू। ये वाला आर, ये वाला, इसको मैं क्यू, नहीं क्यू नहीं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, आर एक्स। पी एक्स कर का देता दो हूँ। एक्स। आर कुछ भी एक्स। कुछ भी, इसको आर मैंने, एक्स टू। अरे रुक इसका जा मीन्स ना, आर एक्स टू। इसको और मैंने एक्स ना, करवा दो, अरे एक्स करवा दो। डब्लू बना दिया, इसको डब्लू बना दिया, चल आर और आर एक्स। एक्स टू। आर एक्स तो टू। आर ग्रुप टू में है कि नहीं, तो ग्रुप टू में इसका वैलेंसी टू, एक्स का वैलेंसी वन, तो इंगे पिंगे आर एक्स टू। समझा क्या, ऐसा क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार देखा है कि नहीं। Yes. चलो बेटा अगर मैंने यस आपको सर। ऐसा बता दिया, एक्स, व्हेन एक्स रिएक्ट विद एक्स क्या बनेगा, एक्स टू। एक्स टू, एक्स एक्स और टू एक्स के में सिंगल कोवैलेंट। कोलन, हाँ ये नॉन मेटल है, समझा कि नहीं। यस। ओके, तो ये बेटा कहानी थी तुम्हारे किसकी, पीरियोडिक टेबल की, बराबर है। अब हम लोग आ जाते बेटा फटाफट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। सर हाँ बोल। एक आयोनिक इक्वेशन में लिखो ना। आयनिक इक्वेशन अभी तो दो लिखा तेरे सामने। आयनिक इक्वेशन सपोज मैंने तेरे को दे दिया, देयर इज एन एलिमेंट ले, देयर इज एन एलिमेंट एक्स, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 एंड वाई, राइट देयर आयनिक इक्वेशन। तो एक्स मतलब 11 है, मतलब क्या होता है बोल बेटा, 281 होता है कि नहीं, तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, और क्या बनेगा x1 प्लस, समझ में आ गया। वाई कितना है तेरा, 17, तो क्या हो जाएगा 287, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बन जाएगा y1 माइनस, हो गया। इसको आयनिक इक्वेशन, आयन बना के नहीं है, इसको कहते हैं आयनिक इक्वेशन, समझा क्या, बोलो। यस। यस। और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन, बराबर है। अब बेटा ना पीरियोडिक टेबल में बेटा ना पीरियड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में फटाफट कराता हूँ, इवनिंग में 6 बजे हम लोग बाकी का टॉपिक करेंगे, उसमें भी मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, इधर पे आ जाओ। अपने को क्या करने का था बोलो बेटा, पॉलू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में बेटा फटाफट में आपको बता थी क्या क्या करना है। ओके बेटा, देवी और सज्जनों फटाफट आ जाओ बेटा, हम लोग को इसमें तीन चीज पढ़ना है, तीन तरह के पोल्यूशन पढ़ने का है, एसिड रेन, हेलो, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ये मैंने पीडीएफ शेयर भी किया हुआ है। वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री थिंग, एसिड रेन, ओके, ग्लोबल वार्मिंग, एंड देन बेटा वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओजोन डिप्लीशन। तो चलो, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में सबसे पहला आपको ना ये, व्हाट इज एसिड रेन, द एसिड रेन refers to the various way in which the acid form in the atmosphere condense and fall on the earth। फिर आपको पूछेगा व्हाट आर द वेट डिपॉजिट ऑफ एसिड रेन, तो क्या बोलोगे, रेन, स्नो, फॉग, ड्यू। व्हाट आर द ड्राई डिपॉजिट, पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रेट एंड सल्फेट। अभी एग्जामिनर का बेटा ये आता है वेट डिपॉजिट अदर देन रेन, स्नो, फॉग, ऐसा पूछेंगे।
What do you mean by pollution? Pollution means it is the state in which the condition of air is made unclean due to the introduction of foreign element. कैसे? From natural source or man-made source, which has a harmful effect on the living organism on Earth. This is known as atmospheric pollution. अब आपको ना एग्जाम में क्या पूछेंगे, ये देखो। अभी एसिड रेन किसके वजह से होता है, मैं आपको बता देता। ये तीन के वजह से होता है, NO2, SO2, ठीक है बेटा, CO2 से इतना नहीं होता है, लेकिन ये दोनों से ज्यादा होता है। फिर आपको एग्जाम में पूछेंगे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल विल गिव विच गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गिव्स विच गैस, H2S, विच इज ऑक्सीडाइज टू सर हमें ये सारे रिएक्शन याद रखने हैं। सल्फर डाइऑक्साइड। नहीं, रिएक्शन नहीं, लेकिन ये आप, ये तो इजी है बेटा वैसे भी, ठीक है। फिर सल्फ्रिक एसिड बनाते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है, SO2। अब बेटा आपको ना पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, एसिड रेन के बारे में, कि वाई नेचुरल रेन वाटर इज एसिडिक। तो लेकिन पहला पहला उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, पता है कि एक स्केल होता है, पीएच स्केल। क्या होता है, ऐसी एक पीएच स्केल स्केल। होती है, पीएच स्केल होती है। तो अगर मैंने आपको कोई एसिड दिया है, बेस दिया है, सॉल्ट दिया है, तो वो पीएच स्केल से पता करते हैं। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला सुन लो बेटा। पीएच क्या होता है वो मैं आपको बता देता। देखो ऐसा ये स्केल होता है पीएच। पीएच मतलब P फॉर पावर, H प्लस पावर ऑफ H प्लस आयन। उसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 14 तक। अच्छा, और बीच में कौन लिखा है, 7। 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। 0 to 7 होगा तो वाटर। एसिडिक, एंड 7 to 14 के बीच में होगा तो बेसिक। क्लियर है। अच्छा, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी एंड हाई H प्लस आयन। बोलो दियान, छपरी बॉय। सर सर ये चैप्टर में जो आपने मार्किंग्स दिए उसमें से ही पढ़ना है या पूरा चैप्टर से मैंने कुछ भी ये आ पूरा सकता है? PDF शेयर किया, ये PDF में से मेन पढ़ना है, ठीक है ना, मैंने अच्छा। ग्रुप में, और ये मार्किंग भी जो दिया था वो, ठीक है, ये PDF। अच्छा, अभी एग्जाम में मैंने आपको बोला है PH1, PH3, PH5, हु इज द मोस्ट एसिडिक, बताओ। फाइव। 1। हाँ, लोअर द पीएच हायर द, One. समझ में आ गया ना बेटा, फाइव। क्लियर है। One. अच्छा, ये एग्जैक्ट 7 होगा तो न्यूट्रल। तो व्हाट इज दिस पीएच स्केल, इट इज अ स्केल विच इज यूज टू मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी भी। न्यूट्रल भी हो सकता है कि नहीं, बोलो बेटा, क्लियर। हायर द पीएच लोअर द एसिडिटी, क्लियर है, उल्टा होगा यहाँ पर। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। अब पहला गिव रीजन आपको क्या आएगा, भाई नेचुरल रेन वाटर इज व्हाट, एसिडिक। तो अच्छा, हवा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सी रेन वाटर है। CO2 तो पे रेन सो इसके H2CO3। कार्बोनिक एसिड बना, एसिड बना तो बेटा इसका पीएच कितना होता है, 5.6। देयरफॉर ये एसिड रेन होगा कि नहीं, बोलो बेटा, क्लियर है, राइट। यस। ये देखो यहाँ पर, नेचुरल रेन वाटर इज एसिडिक, ठीक है। तो देखिए मैं नेचुरल रेन वाटर में ये कंबाइन हो गया, क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, क्लियर है, ओके। अब बेटा आपका एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, राइट अ रिएक्शन इन विच सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू सल्फरस एसिड। सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू सल्फरस, तो पहले क्या होगा, दो स्टेप में होगा। सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू SO2। व्हेन यू डिसॉल्व SO2 इन वाटर यू गेट सल्फरस। सल्फरस में H2SO3 है, याद रखना। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेंगे कन्वर्ट सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर, SO2 plus O2 gives you SO3 नहीं, तो SO3। 3 स्टेप में होगा, सल्फर इनटू, पहला क्वेश्चन अच्छे से सुन। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2, फिर SO2 प्लस ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड। कभी कभी आपको ऐसा भी पूछते हैं, हाउ यू कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फरस एसिड, तो एक ही स्टेप, ये वाला ही बताना। फिर अगर कभी आपको पूछा हाउ यू कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको ये 2 स्टेप बताना पड़ेगा। दोस्त। सल्फर ये बनाना पड़ेगा, फिर ये बनाना पड़ेगा, क्लियर है, राइट। फिर आपको पूछेगा हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रिक एसिड। हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब बिजली गिरती है तो क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। MCQ में एक क्वेश्चन आता है, नेम द ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज, तो क्या लिखोगे, NO। नाइट्रिक ऑक्साइड। NO फिर O2 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा, NO2। फिर NO2 से क्या बनेगा, पानी में डालोगे तो नाइट्रिक एंड नाइट्रस, एक नाइट्रिक एसिड मिल गया कि नहीं, बोलो रे, क्लियर है। ये अच्छा, अब बेटा है ना, ये एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये सब गैस बाहर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग गाड़ी का कार के अंदर जो बेटा इंजन होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, तो वो पूछेंगे, कैटालिटिक राइट द कन्वर्ट। रिएक्शन टेकिंग So प्लेस। platinum. नहीं नहीं, अभी पहले इंटरनल कंबशन इंजन में क्या रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद कैटालिटिक हाँ, कन्वर्ट। तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पे अंदर NO बनेगा, फिर NO वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर NO2। अगर बेटा ये दोनों एटमॉस्फेयर में आएगा तो इससे एसिड रेन हो सकता है कि नहीं, बोलो।
तो क्या ऐसा हम लोग आने देंगे क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया क्या लगाने का? इंटरनल कार के अंदर में बेटा, Catalytic हाँ, convert. कंबशन मशीन के आगे ना वो लोग ने कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया है। तो गिव राइट द रिएक्शन टेकिंग। देखिए NO और NO2 बाहर आता था ना, ये देखिए ना, ये यहाँ से बना, वो डेंजरस है, तो हम लोग ने यहाँ पे कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं। कैटेलिटिक कन्वर्टर में कैटेलिस्ट कौन होता है? प्लेटिनम एंड Platinum पैलेडियम। palladium. और ये दोनों को वो सेपरेट कर देगा। देखिए नाइट्रोजन, और हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो होता ही है ना बेटा। तो राइट अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, देख मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही दिया ये पूरा। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन व्हाट बेटा? कैटालिटिक कन्वर्टर। तो क्या लिखोगे पहले बोलो? अरे NO है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता था ना, तो प्लैटिनम एंड पैलेडियम इट विल गिव यू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज देयर अगेन इट विल गिव यू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टू कैटलिस्ट? तो प्लैटिनम एंड पैलेडियम। क्लियर? हेलो। Yeah. अब बेटा ना आपको ये बताना है, ऋषान बोल भाई राजा। Or is it necessary that we have to write both platinum and या palladium? बहुत 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 Or can we write even one as बहुत बहुत well? बहुत 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 Both. बहुत 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 बहुत। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ेंगे। अब बेटा आपको है ना एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एसिड रेन से सॉइल पे क्या फर्क होगा, हाउ विल इट विल अफेक्ट। Nutrient leaching. हाँ तो ये मैं बता रहा, देखो बेटा, जब एसिड रेन अगर सॉइल पे गिरेगा तो सॉइल के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम और वो सब। सो द मिनरल्स लाइक पोटेशियम एंड Oil कैल्शियम विल fertility. इंटरेक्ट विद द एसिड एंड दे विल गेट वॉश्ड अवे। तो उसको क्या कहते हैं? लीचिंग। दे गेट लीचिंग, लीचिंग बोलते हैं। अरे सॉइल में से न्यूट्रिएंट गायब हो जाएंगे। दूसरा बेटा क्या होगा? सॉइल का एसिडिटी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अरे एसिड रेन गिरेगा तो बढ़ेगा, तो क्रॉप अच्छे से उगेगा क्या? नहीं। फिर सॉइल का फर्टिलिटी कम होगा, क्यों? व्हेन एसिड रेन विल फॉल, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट दे विल डाई और दे विल गेट इनहिबिटेड। क्लियर है? अगर मरीन लाइफ पे गिरेगा तो क्या होगा? अरे मरीन लाइफ में बेटा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? तो बेटा इंडस्ट्री में से बेटा मर्क्यूरी एंड ये सब वॉश अवे होकर मरीन लाइफ में जाएगा एंड दे विल डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक। आप लोगों ने पढ़ा रहेगा मिनीमाटा डिजीज। Minamata, मीना Minamata. मीटा, हाँ मीना माटा, माटा माटा, हाँ मीना माटा। अभी बेटा है मैंने ना, ज्योग्राफी में पढ़ा था। हाँ अगर बेटा पीएच पानी का देख 6 से कम हो जाएगा तो सब मच्छी अंदर का एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट विल स्टार्ट डाइंग। देखना साल्मन फिश डाई बिलो इफ पीएच ऑफ द वाटर डिक्रीज, मतलब एसिडिक हो जाएगा। तो प्लांट पे होगा तो क्या होगा? प्लांट का लीफ डीकलराइज होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, इट विल रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, इट विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। ह्यूमन में क्या हो जाएगा बोलो बेटा? बायोमैग्निफिकेशन, टॉक्सिसिटी हो जाएगा कि नहीं? मर्क्यूरी किस में गया? फिश में गया। फिश को किसने खाया? ह्यूमन में। तो ह्यूमन में आ जाएगा कि नहीं टॉक्सिसिटी? अच्छा, Yes. आपके रोड साइड पे बेटा जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्टैच्यूज, वो किसके बने हुए हैं बोलो बेटा? मार्बल के। मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। उस पर अगर एसिड रेन गिरेगा तो क्या बन जाएगा? तो इट विल अफेक्ट दैट, इट विल करोड ना बेटा, वो स्टैच्यूज में छोटे छोटे ये हो जाएंगे, होल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एसिड रेन को भी हम लोग कैसे कंट्रोल करने का? तो इंस्टेड ऑफ फ्यूल, नॉर्मल फ्यूल, हम लोग क्या यूज करने का? CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। दूसरा हम लोग को क्या यूज करने का? टेक्निकल डिवाइसेस, कौन सा? कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करने का। बराबर है? फिर नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे जाते थे बेटा? ग्लोबल। इसमें बेटा यहाँ पे 4 डेफिनेशन आपको बाय हार्ट करना है, 3 डेफिनेशन। पहला ग्लोबल, मैं पहले बता देता बेसिकली बेटा। देखो बेटा, अब अर्थ पे लाइफ इज पॉसिबल, वाई? बिकॉज अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस। वो लोग क्या करता है? सनलाइट आता है तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करके रिटर्न जा रहा है तो जाने नहीं देता, उसको वापस रिफ्लेक्ट करता है। तो अर्थ का टेम्परेचर वार्म है बाकी सब प्लेनेट से। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब अर्थ पहली बार बना था तो इसके अंदर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थे वो लिमिटेड थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया, अपना मैन मेड एक्टिविटीज हम लोग ग्रीन हाउस गैस बढ़ा रहे हैं, तो ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके आता था, फिर थोड़ा चला भी जाता था। लेकिन अभी ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया तो वापस रिफ्लेक्ट ही हो रहा है, तो इससे अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर है? तो उससे वजह से क्या हो रहा है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहा है, फ्लडिंग हो रहा है, सुनामीज आ रहे हैं, वेदर कंडीशन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? आर दोज गैसेस दैट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन रिटेनिंग द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एग्जाम में ये भी पूछेगा, विच इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस? मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये 2 मेजर है। फिर वाटर वेपर है, ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। फिर what is greenhouse effect? It is the warming up of the earth's surface due to the concentration or the blanketing effect of greenhouse gases. अब what is the definition of global warming? Greenhouse gas effect के वजह से atmospheric temperature rises, which is not fixed to only one region, but it has a global impact. We call it as global warming. अब आपको ना यहाँ पर एग्जाम में एक एक ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, फटाफट चलो। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। फिर आपको ये भी पूछेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको कैसे मिला?
हम लोग ब्रीथ इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट क्या करते हैं, तो रेस्पिरेशन। तो ये ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज विल गिव यू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर कोयला हम लोग जलाएंगे तो भी हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कि नहीं। फिर ये मीथेन को नेचुरल गैस बोलते हैं, इट ऑल्सो गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। ये मजेदार बात, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं। So greenhouse gas gives another greenhouse हाँ, gas. ये भी ग्रीन हाउस गैस। एग्जाम में ऐसा मैं घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा, राइट अ रिएक्शन इन विच वन ग्रीन हाउस गैस गिव्स यू अनदर ग्रीन हाउस गैस। डोंट वरी बेटा, ये मैंने देखो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को, ये देखो, राइट अ रिएक्शन इन विच वन ग्रीन हाउस गैस गिव्स यू अनदर। देखिए बेटा, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं, गिव्स यू अनदर ग्रीन हाउस गैस, ये पूरा रिएक्शन क्लियर है। फिर ऐसा भी मैं बोलूंगा, नेम अ ग्रीन हाउस गैस विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मीथेन। क्लियर है कि नहीं, राइट बेटा। ये देखना, ग्रीन हाउस गैस कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मीथेन। अच्छा, अभी तुमको पता है, नेम अ प्रोसेस विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, Respiration. रेस्पिरेशन। देख कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ कि नहीं। नेम अ प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड, फोटो Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में ग्रीन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट ना बेटा, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इसलिए बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर है ना बेटा, पीछे दिए हुए बेटा, देखो। अगर आप हम मैं आपको बताऊंगा ना, यहाँ पे पीछे वही सब क्वेश्चन आंसर्स है बेटा। ये देख बेटा, देख रहा है कि नहीं, नेम द प्रोसेस विच रिलीजेस विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अभी आप मेरे को बताओ, जब बेटा एसिड रेन गिरेगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इंक्रीज होगा या डिक्रीज, डिक्रीज। Decrease. अच्छा, एसिडिटी, Increase. फर्टिलिटी, Decrease. पीएच, Increase. ये डिक्रीज होगा, एसिड बढ़ता है, लोअर द पीएच Oh, हायर द sorry, एसिडिटी, sorry, sorry, sorry. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। क्लियर Decrease. है। फिर देखा, ऐसा भी यहाँ पे भी देखा, ऐसा क्वेश्चन दिया मेरा, देखा, नेम अ ग्रीन हाउस गैस विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो कौन था, मीथेन। Methane. समझ में आया। ये देख, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट प्रोड्यूस लाइटनिंग डिस्चार्ज, एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड। बताएगा ए विच इज द वेट डिपॉजिट ऑफ एसिड इन अदर देन रेन वाटर, स्नो, Fog. फॉग, ड्यू। याद आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं बेटा। फिर वो देख, रिएक्शन वाला भी मैंने बोला था ना आप लोगों को, ये देख, मेजर पोल्यूटेंट फॉर्म बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड। Sulfur dioxide. The greenhouse gas which combustion produces another greenhouse gas. Methane. क्लियर है कि नहीं बेटा, राइट। फिर देखिए, रिएक्शन मैंने आपको बताए थे ना बेटा, ये देख रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, पानी डाल दो इसके अंदर। फिर देख, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इंटरनल कंबशन इंजन वाला रिएक्शन। N plus हाँ, N2 plus O2 gives you फिर देख, अब ये NO मीथेन plus टू O. कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम लोग ने किया था कि नहीं, बोलो, Yes. राइट ना बेटा। फिर देखिए, गिव रीजन पीएच ऑफ, फिर वाई कैटालिटिक कन्वर्टर शुड बी यूज्ड। ये सब देखो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं कि नहीं, बोलो बेटा फटाफट। फिर अभी हम लोग Yes. इधर पे आ जाते हैं, किधर पे, क्या ये रहा, ये हम लोग ने लिखा। फिर आप लोग को है ना, ये पूछेंगे बेटा, ग्रीन हाउस गैस का सोर्सेस के बारे में थोड़ा पूछेंगे, तो बेटा मैं आपको बताते जाता हूँ, ये देखो, हाँ ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया बेटा। फिर हम लोग कहाँ पे आ रहा है बेटा, मीथेन। मीथेन बेटा नेचुरल गैस भी है, याद रखना बेटा, क्लियर है। उसको मार्श गैस भी बोलते हैं बेटा, मार्श गैस। फिर ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरो। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, बोलो बेटा, ये पूछे गया बेटा। तो ग्लोबल वार्मिंग होता है कि नहीं, सी लेवल राइज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, याद आ रहा है कि नहीं, फ्लडिंग, क्लाइमेट में क्या हो जाएगा, जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही थी वहां पे कम, जहाँ पे कम हो रही थी वहां पे ज्यादा बारिश। इकोसिस्टम में बेटा वो बहुत सारे स्पीसीज मर जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड प्लांट लाइफ में इट विल अफेक्ट द लाइफ साइकिल, फर्टिलिटी, बराबर है कि नहीं। फिर आपको पूछेंगे कि अभी हम लोग ग्रीन हाउस गैस को कैसे प्रिवेंट करें, तो इसमें ना बेटा बहुत सारा फुल फॉर्म आएगा। और पूछेंगे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर कौन होता है, प्रोपेन। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मीथेन। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, Is कंप्रेस्ड natural नेचुरल gas. गैस। अच्छा, सीएनजी क्यों यूज करते हैं कार में, बिकॉज बेटा वो चीप है, उसका नो पोल्यूशन, एंड बेटा माइलेज ज्यादा देती है, फ्यूल एफिशिएंट। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रैक्टिकली नो पोल्यूशन, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा होता है, बोलो बेटा, बायो फर्टिलाइजर आर बेटर देन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। वेज ऑफ रेड्यूसिंग ग्रीन हाउस, देखो ना बेटा, बहुत सारा प्लांट उगाने का, तो देखिए क्या हो रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस। फिर दूसरा हम लोग को क्या यूज करने का, बोलो बेटा, बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, एंड इको फ्रेंडली पॉलिसीज। क्लियर है। फिर ओजोन, ओजोन के बारे में हम लोग पढ़ने का है, तो उसका कलर के बारे में पूछेंगे, तो ब्लूइश एक्सप्लोसिव गैस।
अभी वो कहाँ पर होता है बेटा, तो ये देख बेटा इधर पे अर्थ है, ट्रोपोस्फियर, ओके, फिर बेटा कौन सा, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर। अभी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज द ट्रोपोस्फियर, 8 to 10 किलोमीटर अबव अर्थ, स्ट्रेटोस्फियर 10 to 50, मिजोस्फियर 50 to 80। ओजोन कहाँ पे है बोलो बेटा, स्ट्रेटोस्फियर में। एमसीक्यू में पूछेगा विच स्फीयर दिस इज ओजोन इज प्रेजेंट। ओजोन के किसने डिस्कवर किया था, चार्ल्स फेब्री। फिर एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बेटा डॉप्सन। उसने ओजोन मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसका नाम क्या है, डॉप्सोमीटर। इट इज मेजर्ड एट डॉप्सन यूनिट, इट इज द मेजर ऑफ डेंसिटी ऑफ ओजोन ओवरहेड। ओजोन क्या करता है बेटा, सनलाइट से जो यूवी रेज आता है उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बेटा। लेकिन अगर बेटा ओजोन गायब हो जाएगा, यहाँ पे होल हो जाएगा, तो ये यूवी रे डायरेक्ट अपने बॉडी पे आएगा। तो ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है, प्लांट को भी इफेक्ट करता है। अपने में क्या क्या इफेक्ट करेगा, स्किन कैंसर हो सकता है बेटा, कैटरैक्ट हो सकता है, जीन्स का म्यूटेशन हो सकता है। प्लांट पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, म्यूटेशन इन प्लांट, ग्रीन कलर ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिसअपियर, फिर रिटार्डेशन, ग्रोथ कम हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में ये पूछेगा बेटा, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर रिड्यूसेस पोल्यूशन, बायो फर्टिलाइजर। फिर आपको पूछेगा एग्जाम में, वेरी गुड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन नेचर में कैसे बनता है बेटा, ओजोन ऊपर होता है, तब बिजली गिरेगी तो लाइटनिंग होगा, लाइटनिंग होगा तो क्या मिलेगा, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन को लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन एटम। फिर ये ना वापिस ऑक्सीजन है ना, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ओजोन। एग्जाम में मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ऑक्सीजन कंबाइंस विथ विच एटम टू गिव यू ओजोन। nascent oxygen. हाँ, ऐसा पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा। फिर बाद में ओजोन वापस क्या हो जाएगा, ओजोन पे यूवी लाइट गिरेगी तो वापस ऑक्सीजन देगा और नेसेंट ऑक्सीजन। फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन वापस ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट, मतलब ये साइकिल चलते रह रहा है। ओजोन से ऑक्सीजन बना और ऑक्सीजन से ओजोन। लेकिन इसको डिस्टर्ब कौन कर देता है, हम लोग जो केमिकल यूज करते हैं, कौन सा केमिकल है, Chlorofluorocarbon. हाँ। तो डिप्लीशन अभी हो जाता है, डिप्लीशन किसके वजह से होता है, एग्जाम में पूछेंगे। तो विच केमिकल आर रिस्पॉन्सिबल, वो भी मैं बताता हूँ पहले आपको। हाँ, तो यूवी यूवी लाइट इस ह्यूमन पे क्या इफेक्ट करता है, स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट, अर्ली एजिंग, डीएनए म्यूटेशन, राइट। प्लांट में क्या करेगा, रिटार्ड ग्रोथ, रिड्यूसेस क्लोरोफिल कंटेंट, हार्मफुल म्यूटेशन, इनहिबिट पोलन जर्मिनेशन। अच्छा, अभी आप एग्जाम में पूछेंगे विच गैस आर रिस्पॉन्सिबल, चलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। ये सब गैस तुम्हारा क्या करता है बोलो बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। अब कैसे वो ओजोन को डिप्लीट करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो देखिए एग्जाम में पूछेगी डिप्लीशन ऑफ ओजोन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए बेटा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस पे यूवी लाइट गिरेगी तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन। अब ये नेसेंट ये क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। देख बेटा, तो ओजोन ब्रेक हो गया कि नहीं, देख। तो अभी इसको प्रिवेंट कैसे करने का, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करने का बोलो बेटा, हम लोग नेम द प्रोडक्ट एज सीएफसी। सीएफसी में मतलब क्या, ये सीएफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग कहाँ पे यूज कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर, Aerants, हाँ, aerosol sprays, एरोसॉल। AC coolant, तो बेटा अभी आपको अभी भी अगर आप देखोगे ना, कोई भी स्प्रे पे लिखा रहता है सीएफसी फ्री, और इंस्टेड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग को क्या यूज करने का, HCFC, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन। एंड वी हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल ट्रीटी विच वाज गिवन इन Montreal मॉन्ट्रियल। Treaty. ये हो गया बेटा। अभी देख यहाँ पे क्वेश्चन देखना बेटा, क्या दिया है, अ गैस इन Ooh, प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट गिव्स टू एटम्स ऑफ सेम गैस। कौन था, ऑक्सीजन। oxygen, केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, methyl chloride, methyl chloride, a renewable source of energy which causes no pollution, LPG. LPG, hydropower। hydropower, ये hydropower. We क्या बोल, ये देखना, a molecule of ozone into टू ऑक्सीजन गैस। तो ओजोन पे नेसेंट ऑक्सीजन आएगा तो क्या बन जाएगा, टू ऑक्सीजन। फिर ओजोन टू ऑक्सीजन टू ओजोन, तो ऑक्सीजन टू ओजोन कैसे हो जाता है बोलो बेटा, प्लस ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, याद आ रहा है कि नहीं, यू गेट। क्लियर है। फिर नेम भी बोला, एन एटम विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, तो आंसर क्या होगा, नेसेंट और ऑक्सीजन। हाँ बोलो। वो ऑक्सीजन जब नेसेंट ऑक्सीजन में बनता है वो भी लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, 2 स्टेप में हुआ बेटा, पूरा फोटोलाइसिस होता था ना, ये देखना बेटा, ओके। ये देखना मैंने लिखा भी ना, ऑक्सीजन टू ओजोन, तो ऑक्सीजन से पहले ये बनेगा फिर। क्लियर है। फिर देखना नेम, ये भी बोला, ग्रीन हाउस गया हो गया, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन, मीथेन। मीथेन दोनों में आता था कि नहीं बोलो, यस।
क्लियर Okay. बेटा? तो ये देखो पूरा हो गया। तो बेटा दोनों चैप्टर अपने, अच्छा, विच फर्टिलाइजर आर बेटर? Biofertilizers. हाँ, तो बायो। क्लियर? तो बेटा ये दोनों चैप्टर मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया है। Let's go. ओके, इवनिंग में मैं 6 बजे बाकी सब करूँगा। डॉली चाय वाला बोका, बोल क्या हो गया? नहीं सर, वही डाउट था इसका। अच्छा बेटा, तो 6 PM को आई डू द रिमेनिंग। ठीक है, चलो। अभी सर आप ये दोनों पीडीएफ प्लीज शेयर कर दोगे? मैंने कर दिया है, फिर से शेयर कर देता अभी के अभी। ठीक है, थैंक यू, थैंक चलो यू। Thank you, बाय। sir. Thank you, Bye, sir. Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, Thank sir. you. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, अभी sir. तो Thanks. Thanks.